afternoon, everyone. I, Palak Rastogi, welcome you all to Day 1 of Vritika 2021 Convention of Media Students organized by DME Media School, Delhi Metropolitan Education, Noida, a premier college affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University and approved by the Bar Council of India. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school include BG Varghese Lecture Series, Peer-to-Peer FGP, International Film Festival CFI, International Conference ICANN, and Vritika Convention of Media Students, and newly added in the list is VIS Vibrant India Series. The 3-day convention of media students is being conducted from October 11 to 13, 2021 on the theme United India, Unique Minds. Our hashtag is hashtag Youth for India. Our media partner for Vitika 2021 is Jai Hind Times. The event is powered by Spark, the student body of DME Media School. Spark, that is students with positive attitude and resonating communication. Vritika 2021 is a convention of media students aimed to provide a platform to engage media students in thought-provoking discussions, debates, and discourse and enhance their confidence and personality through their deliberations and develop consciousness among the media students for responsible and accountable professional conduct. Vritika 2021 includes 8 live competitions, 7 pre-submission events, and 3 workshops. Today, I welcome you all to the Quality competition. Our judges for the competition are Dr. Hemant Kaushik and Mr. Naman Sharma. Before we start today's session, I would like to invite Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to say a few words. Thank you, Palak. Good afternoon, everyone. Welcome, Dr. Hemant Kaushik and Naman Sharma. बहुत अच्छा है ये इंटरव्यू जज करना. To all two of you, taking interview is very skilled format, very easy but not so easy. अभी थोड़ी देर पहले ही इंटरव्यू वर्कशॉप स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है और उसमें काफी कुछ सीखा भी होगा, काफी कुछ समझा भी होगा. हाउ टू टेक इंटरव्यू एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू, कैसे हम इंटरव्यू लेते हैं, क्या क्या स्किल उसके लिए जरूरत है. तो so let's see about competition. All the best to all participants. So thank you. Thank you, ma'am. Now, I would like to introduce our judges. Dr. Hemant Kaushik is a television journalist and media trainer with more than 15 years of experience. He is currently serving an associate editor at the News Nation channel. He has been a TV reporter with India's #1 news channel, Aaj Tak, for 12 years and also contributed as a senior faculty and course in charge of the broadcast journalism program at the India Today Media Institute. As a digital content writer, he has also contributed to the websites of the India Today group. He started his career as a sports journalist in 2005 with Aaj Tak and took on teaching along with his journalism in 2013. From Sri Lanka to Bangladesh and from record-breaking games like World Cups and Commonwealth Games to match fixing, doping, scams, and controversies. Our next judge for the competition is Mr. Naman Sharma. He is currently working with Samsung Research and Development India as a senior professional for ad operations and training is Cloud Develop Group. He has also worked with ByteDance India as a content quality analyst in content operations. Also, he has been an alumni of Delhi Metropolitan Education with the BAJMC department 2016-2019 batch.
Coming down to our competition, colloquy is also known as interview, where two people will have a conversation face to face, where one will ask questions and the other answer the questions. The personalities for the event are Ruskin Bond, MS Dhoni, Neeraj Chopra, A.R. Rahman, and Shashi Tharoor. Guidelines for the event are as follows. Participation will be in pairs only. In the pair, one will be an interviewer and the other one will be the personality. Time limit for the interview is 3 to 4 minutes. The interview can be either in English or Hindi. Dress code according to the type of interview. Casual dressing. Formal interview, formal dressing. Participants should have a perfectly working microphone and video camera. Use of offensive words and language is prohibited. Judges' decision will be final and binding. So participants, are you ready? Judges, are we ready? The parameters of judgment are presentation, research, engagement, and spontaneity. Now, I would like to invite our first team, Mrinal Rawat and Khushi Chaudhary. All the best, guys. Thank you. Shall we start? Yeah, I just have a request that if participants would introduce themselves first, and who is interviewee and who is interviewer, that you have to tell right before the start. So, sir, I'm Khushi Chaudhary and I'll be the journalist, and Mrinal Rawat will be the interviewee. Okay. And she will be playing the role of Neeraj Chopra. So we will be taking basically the interview of Neeraj Chopra. Right. Yes, sir. Start. Okay. So welcome everyone to today's episode of Talk About Success, where we bring the youngsters to talk about and we will talk about their success stories. And today we are here with the Neeraj Chopra, who is the gold medalist of 2020 Olympics. This man has created history by winning the India's first gold medalist in athletics. So we welcome you, Neeraj. धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. So Neeraj, have you ever thought that you will become such a big mega star? मैम आपको हिंदी आती है? हिंदी में हाँ जी बिल्कुल. तो नीरज, क्या आपको कभी लगा था कि आप इतने बड़े मेगा स्टार बनेंगे या फिर इतनी बड़ी फेमस पर्सनालिटी बनेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ मालूम नहीं था मुझे, बट जहां तक बड़े स्टार की बात है तो मैं अपने आप को कोई बड़ा स्टार नहीं मानता. मैंने तो मेरी तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है और मैं तो बस अपने ऊपर मेहनत करना चाहता हूँ कि अगले सालों में कि मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकूं. तो जी हाँ. तो जैसे कि नीरज, जैवलिन जो है वो इंडिया के अंदर एक इतना प्रचलित खेल नहीं है, तो आपने कैसे सोचा कि आप जैवलिन ही परस्यू करना चाहते हैं स्पोर्ट्स फील्ड में, या फिर आपको जैवलिन थ्रो ही खेलना है? जी मेरे जो फादर थे ना, वो मुझे स्टेडियम इसलिए भेजते थे क्योंकि ना मैं ना बड़ा मोटा सा बच्चा था, अनहेल्दी, वेट ज्यादा था. तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं रनिंग करूं और अपना जो वेट है थोड़ा हेल्दी हो जाऊं, तो इस कारण मैं जाता था. बट मैं जब स्टेडियम में गया तो मैंने देखा बहुत तरीके के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, बट एक स्पोर्ट जो था वो ये जैवलिन, उस पे तो मेरी नजर हटी ही नहीं. अंदर से जो एक फीलिंग होती है ना कि हाँ यार ये करना है, तो वो स्पोर्ट्स के लिए आई वो फीलिंग, और किसी और स्पोर्ट्स के लिए नहीं आई. और बाकी बस फिर एक बार ट्राई किया तो अब खेल ही रहा हूँ. तो नीरज, जैसे कि हर इंसान के लाइफ में, हर फेमस पर्सनालिटी या फिर जो भी कोई स्टार बनता है, उनकी लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पीरियड आता है. तो आपकी लाइफ में वो स्ट्रगलिंग पीरियड क्या था? जी मेरा जो स्ट्रगलिंग पीरियड था ना वो ये था कि मेरे गांव में कोई स्टेडियम नहीं था, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें पानीपत 16 से 17 किलोमीटर जाना पड़ता था दूर. तो उधर ट्रेनिंग, एक नई डाइट, तो ये सब थोड़ा कठिन था क्योंकि एक नए एनवायरनमेंट में एक अलग ट्रेनिंग, एक अलग सी डाइट आपको अडेप्ट करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा कठिन था. और जहां तक चुनौतियों की बात है, स्ट्रगलिंग की बात है, तो हर किसी की लाइफ में वो स्ट्रगल होनी चाहिए क्योंकि जुनून होना चाहिए कुछ करने का, और वो जुनून मुझे जैवलिन का था. तो बस आज जो मैं आज हूँ वो उसी चुनौतियों के कारण मैं आज इधर बैठा हूँ आपके सामने. ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है नीरज, कि जुनून होना बहुत जरूरी है, तभी आप जो अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं तभी कर पाएंगे. तो नीरज, अगर आप जैवलिन थ्रोअर नहीं होते तो आज आप क्या कर रहे होते? जी मैं कुछ नहीं, मैं अपने गांव में गाय भैंस चरा रहा होता, और क्या.
तो नीरज, जाते जाते आप अपने फैंस को या फिर अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं भाइयों और बहनों मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो भी करो या करोगे वो दिल से करो, पूरी मेहनत के साथ करो और रिजल्ट का मत सोचो, क्योंकि इस जनरेशन में मैंने एक बात देखी है कि लोग पहले रिजल्ट का सोचने लग जाते हैं। तैयारी उतनी करें या ना करें, बट तैयारी करो पहले, उतनी मेहनत करो और सफलता फिर जरूर मिलेगी। जैसे मैंने अपनी तैयारी की और जहां आज मैं हूँ आप लोगों के सामने बस, और मैं अपने स्पोर्ट्स के भाइयों बहनों से ये कहूंगा कि डाइट अच्छी लो, डाइट अपनी बिगाड़ना मत, क्योंकि अभी तो तुम सही कर लोगे लेकिन इन फ्यूचर वो डाइट ही आपका तो हमें बहुत अच्छा लगा नीरज आज आपसे बात करके, और जैसे कि आप 2020 ओलंपिक्स में अपने देश का नाम रोशन किया है, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी आप देश का नाम और रोशन करेंगे और रिकॉर्ड्स ब्रेक करेंगे। सो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड को हम आएंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू। Thank you, Khushi and Brinal. You were great. Our second team is Tina Solanki and Diksha Kakkar. Good afternoon to everyone. Hi, my name is Diksha and I am playing the role of journalist, and Tina is playing the role of Neeraj Chopra. Tina is okay. Can we start, Hemant sir? Naman? Yes, please. Okay. Please start, Diksha and Tina. Ma'am, can you wait for a second? तो नमस्कार सबको। आज हमारे साथ एक हसीन पर्सनालिटी नीरज चोपड़ा के साथ हम लाए हैं। तो जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, नमस्ते सबको। सबसे पहले तो मैं नीरज चोपड़ा। पूछिए आप आगे। जी नीरज जी, आपको कैसा लग रहा है? आप इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, जिस तरह का आपको सबका प्यार मिल रहा है। देखिए, अब इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना कोई छोटी बात तो होती नहीं है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का लोगों का प्यार मिल रहा है, एक एथलीट के तरह वो के लिए डिमांड देखना और उनके लिए प्यार देखना एक बड़ा ही अच्छा मूवमेंट होता है। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। नीरज जी, आपने सिर्फ जैवलिन ही स्पोर्ट्स क्यों चुना? और भी काफी स्पोर्ट्स थे, तो उनमें से कोई और क्यों नहीं? जी, जब मैं अपने वहाँ पे गांव में रहता था, तो मैं रनिंग के लिए जाता था स्टेडियम में। तो वहाँ जाकर स्टेडियम का एनवायरनमेंट देखना, वहाँ के लोगों को देखना, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स खेलना, हर तरह के। पर एक जैवलिन को देखकर एक ऐसा होता है ना अंदर से कि हाँ, यही करना है। तो मेरे को भी ये था कि कुछ तो करना है स्पोर्ट्स के उसमें, चलो मैं भी करके देखता हूँ। तो वहां पे जब मेरे दोस्त बने थे वहां के, या मेरे जो भी सीनियर थे जो खेलते थे, उन्होंने मेरे से एक बार करा के देखा, तो मेरा फर्स्ट ट्रायल में ही बहुत अच्छा गया थ्रो। तो वो बोले कि हाँ करो, ट्राई करो। तो मैं ऐसे ही फिर उसमें मेरा लगाव पड़ गया। जावलिन को देखकर मेरा बस हो गया कि हाँ, मेरे को यही करना है। एक लगाव हो जाता है ना कि किसी चीज को देखकर, तो वही। जी, हम और भी काफी सवाल आपसे जानना चाहते हैं। तो हम सब जानते हैं 2016 में जो आपने रिकॉर्ड सेट किया था, उसके अलावा आपकी फर्स्ट अचीवमेंट या फर्स्ट मेडल कब मिला आपको? मेरा फर्स्ट मेडल मेरे को 2012 में मिला था, अंडर 16 में, जब मैंने लखनऊ में खेला था। वो मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था, क्योंकि मेरा 1.5 साल के बाद मेरा कहीं जाकर नेशनल लेवल पर हुआ था। उससे पहले मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि हरियाणा में और भी ज्यादा जो जैवलिन थ्रो होते हैं वो और ज्यादा थे उस टाइम पर। जी, अच्छा, हमें ये भी सुना है कि आपने 2018 में कुछ टेक्निक इशू पर काम करा। वो क्या इशू थे, और अब 2018 से 2021 में इतना लंबा समय क्यों लगा? जी, जो हमारी फील्ड होती है वहां पर आगे एक सेक्टर होता है जिसमें हम थ्रो करना होता है। तो मेरा जो जावलिन था उसका थ्रो सेक्टर के अंदर आता था, तो मेरे को उस पर वर्क करना था कि हाँ, उसको मैं कैसे सही करूँ। तो मैंने अपने कोच का साथ लेकर काफी उस पे काम किया। पर 2019 में मेरा एल्बो का जो इंजरी था वो हो गया, तो सर्जरी के कारण मेरा पूरा 2019 ऐसे ही चला गया। 2020 में मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया, पर लॉकडाउन के वजह से ये हो गया, तो इसलिए इतना लंबा। जी,
अक्टूबर 7 को जैवलिन ऑक्शन हुआ था, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ये मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे। जो ऑक्शन था वो काफी ही ऐसा, उस टाइम तो मेरे को ऐसा फील था, प्रधानमंत्री जी मेरे साथ में थे तो क्या ही फील होगा। हर किसी की मनोकामना है कि हाँ उनसे मिले, उनके साथ में खड़े हुए। तो मेरे को वो मौका मिला और इतनी जल्दी मौका मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो वहाँ पे डिमांड देखी मैंने लोगों के अंदर की, हाँ एक एथलीट के लिए इतनी डिमांड की, इतने मतलब ऑक्शन में इतना ज्यादा हाई पे 1.5 करोड़ का जो गया था, तो ऐसे ही बहुत कम आता है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरा। थैंक यू नीरज जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। हम बात कभी और मिलते हैं किसी अच्छी पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू। Thank you, Tina and Diksha. Our third team for the competition is Prakash Srivastava and Powal Agni Diksha. All the best, guys. मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes, you are audible, Prakash. हाँ, पवल, आर यू देयर? Yes, I am here. हाँ, नमस्कार, मैं प्रकाश श्रीवास्तव और पवल अग्नि दीक्षा दोनों केआर मंगलम यूनिवर्सिटी से हैं। आज मैं डीएमई रिपोर्टर हूँ। जो प्रश्न पूछ रहा है पवल अग्नि दीक्षा, जो एमएस धोनी का रोल अदा कर रहे हैं। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मशाकई, जय जिनेन्द्र, सुस्वागतम सुस्वागतम। कहते हैं तोड़कर कोई मानक नहीं आए, किस्से कहानी कथानक नहीं आए, यकीनन आपने ही पुकारा है हमें, हम यूं आज अचानक नहीं आए। नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डीएमई न्यूज और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिसका अगर हमने आज परिचय दे दिया तो यही लगेगा कि हमने समुंदर से एक बाल्टी पानी निकाल लिया। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने अंधकार को हरने का संकल्प कर लिया है और एक अकेले जुगनू की तरीके अंधकार को हर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी, माही भाई, बड़ी जद्दोजहद के बाद आज हमारे बीच मौजूद हैं। माही भाई का यहाँ अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर, आपके इस काइंड वर्ड्स के लिए। मैं और आगे इस आपकी से वार्तालाप में मैं बहुत आपका सहभागिता दूंगा। माही भाई, असंभव होते रूप को माही ने पुकारा है, क्या वही मन आपका है जो हमारा है? हमारा मन तो खूब कर रहा है कि आज माही भाई से बहुत विषयों पर बात करेंगे और सबसे पहला ही विषय ये है कि आपको हमने जैसे अनस्टोल स्टोरी में भी आपके हमने मूवी देखी थी और आपकी जिंदगी के बारे में भी हमने बहुत टटोला, तो हमें ये पता चला कि आपकी जिंदगी काफी स्ट्रगल पूर्ण है। तो सर अगर आप उस जर्नी के बारे में यहाँ पर बता सकें। देखिए, ऐसा है कि स्ट्रगल तो है, लेकिन मेरे जो स्ट्रगल है मैंने उसको बहुत एंजॉय करते हुए पार किया है। और मैं जैसे झारखंड, बिहार में पहले होता था, अब तो झारखंड हो गया। मैं वहां से आया हूँ और छोटे से शहर से आया हूँ जहाँ बचपन से ही कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप हमें 3 चीजों के लिए बहुत ये फोर्स करते हैं, और वो 3 चीजें हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पेशेंस। तो कहीं ना कहीं वो 3 चीज आज मेरी जो सक्सेस है, शायद कहीं ना कहीं वो माँ बाप का जो आशीर्वाद है और वो 3 चीजें जो है कहीं ना कहीं उसने मुझे अचीवमेंट दिलाने में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। जी माही भाई, आपने सभी फॉर्मेट में ट्रॉफीज जीती हैं। आईसीसी में इस समय आप भारत के शीर्ष को और ऊपर ले जा रहे थे। आपकी एक कंट्रोवर्सी बड़ी सामने आती है, युवराज सिंह के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर उस कंट्रोवर्सी को यहाँ पर बताना चाहें। अरे ऐसा तो अभी तक ऐसा प्रखर कुछ है नहीं, लेकिन शायद कहीं इस इंटरव्यू के बाद अगर कुछ होता है तो मैं आपको ही पकड़ूंगा और मैं बता दूं कि युवराज मेरे छोटे भाई की तरह और हम दोनों में बहुत प्यार है और कोई कंट्रोवर्सीज नहीं है। बहुत सारे मीडिया चैनल ऐसे हैं जो अपने टीआरपी का खेल रचने के लिए ऐसे ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी, हम बहुत मेरे को जब बताया गया कि आप ये प्रश्न पूछेंगे जो मेरे सीनियर्स थे, तो माही भाई इसका सीधा आंसर नहीं देंगे और फिर कि आपने अपने एक सेफ खेल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगला प्रश्न है कि जो कोरोना टाइम था उसमें आप देखेंगे तो यूथ जो था वो काफी बहुत डीमेरिट उसके लिए था, बहुत प्रभाव हुआ है उस पर, क्योंकि वो मैदान पे नहीं उतर पाया, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया। आपने अपना कोरोना टाइम कैसे बिताया है? देखिए, कोरोना टाइम्स तो सही में किसी बहुत सारे लोगों के लिए दर्दनाक रहा है, लेकिन अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है। मेरा कोरोना में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जीवा और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, और जहां तक बात है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस सेशंस भी मैं किया और अपने फिटनेस का भी अच्छा खासा ख्याल रखा हूं मैं। तो मेरे लिए कोविड बहुत अच्छा रहा। जी, बहुत अच्छा रहा। सर एक ऐसी चीज है कि सबने कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे हम देख रहे थे
जडेजा भाई ने अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड किया, उन्होंने लिखना सीखा। आपने कुछ ऐसी चीज आपने कोरोना काल में कुछ सीखी हो एडिशनल? जी देखिए, मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, तो मैंने इस कोरोना लॉकडाउन में मैंने म्यूजिक गाने का प्रयास किया है। और मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मेरे बाबा को भी पसंद था, तो मैंने इस कोरोना में तो मैं यही सीखा हूँ। माही भाई, आज हमारे बीच काफी ऑडियंस है जो आपको सुनने आई है, अगर आप यहाँ पर गाना गा देंगे तो। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपना गाना अपने फैमिली को सुनाया और उसने बहुत मुझे सजेस्ट किया कि आप प्लीज किसी के सामने मत गाना, क्योंकि अगर कोई बेहोश हो जाएगा तो मेरे पे केस हो सकता है भाई। तो आप अगर गाने के लिए मुझे कह रहे हैं तो मुझे प्लीज एक गाना, बस 2 लाइनें आप यहाँ पे गुनगुना दे तो काफी अच्छा रहेगा। Your time is up, Inkri. चलिए फिर इस इंटरव्यू को अभी अंत करते हैं। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोरोना काल में व्यस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रखर श्रीवास्तव फिर हाजिर होऊंगा सफरनामा के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा। चलिए, धन्यवाद प्रखर जी आपको। Thank you, Prakhar and Paul. Our team 4 is Seera and Ishana Patra. All the best, guys. Good afternoon, everyone. This is Ishana Patra, and with my teammate Sarah. And now I'll be the journalist, and Sarah will be the interviewee and playing the role of Mahendra Singh Dhoni. Good afternoon, Dhoni sir. Can you please say something about yourself? Hi, everybody. My name is MS Dhoni. I am the captain of History of ICC International, who captained the national team in limited formats from 2007 to 17 in Indian Test. I'm the only captain of history to win the all ICC trophies. Thank you, Shana. Okay, so I'm going to ask a few questions now. So the first question is, Dhoni, how do you manage to keep yourself calm in every situation? काम वाम कुछ नहीं है, अपने आप को अपना देखना होगा। मैं किसी के भरोसे में रहता नहीं, मैं बस अपने बॉलर्स को जस्ट धमका देता हूँ कि ऐसे कर वैसे कर। उसके साथ मैं उस वक्त में अपने लिए बहुत सारा जॉब ढूंढ रहा था, तो बस वैसे ही मैं अपने आप को शांत कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर I have a few more questions to ask. The next question is, are you dependent on someone else while taking DRS, or you're back your decision? I tried to ask others too, but who? Virat? अरे वो तो अपनी चीक्स के साथ बहुत बिजी रहता है in the crowd, but I always try to keep it me, so मैं ज़्यादा किसी से पूछता नहीं हूँ, so yeah. Okay, so जो next question है आपके लिए, ये सभी लोग आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, like audience में भी सब लोग. So what's the secret of the Dhoni power? Actually, I love milk. तो मैं हमेशा घर में दूध पीता हूँ बहुत ज्यादा। मुझे प्लेन मिल्क से ज्यादा पसंद है शेक। तो मैं हमेशा बचपन से जब था तो मम्मी मुझे शेक पिलाती थी, तो मैं हमेशा वही पीता। Okay, so आपकी मिल्क से एक और क्वेश्चन भी हमें अभी याद आ गया है. So tell us the story. Why do you have like 4 liters of milk daily? मैं ना बचपन से मुझे जिम जाना बहुत पसंद था, तो मैं बॉक्सिंग हुआ, हॉकी हुआ, तो मैं जिम बहुत खेलता था। तो वही चीज की वजह से मैं बचपन से अच्छे से खाना खा के मैं तो समझ रहे हो ना? Okay, sir. So thank you. We'll be like ending this episode right here. We'll meet up in the next one. Thank you. Thank you, Seera and Ishana. Our team 5 is Anwar Hassan and Harshi Sharma. All the best, guys. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के शो में रूबरू, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट हर्षी शर्मा। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट जगत के बहुत ही हसीन सितारों में से एक है। प्लीज वेलकम MS धोनी। थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। चलिए समय की बर्बादी न करते हुए हम
अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्रिकेटर बनने के लिए ऐसी कौन सी खूबियां होना जरूरी है एक क्रिकेटर में जो कि आपको एक बेहतर बनाता हो? बेहतर तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑलराउंडर हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, पर अगर आप जिस भी चीज में हो, वेदर ये आप बॉलिंग करते हो या बैटिंग करते हो, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमेशा सीखने की चाहत रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आप सीखते हो, तो सीखते रहना चाहिए। लोग जानते हैं कि आप एक बेस्ट फिनिशर हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लोग बहुत सारी बातें करते हैं, पर हाँ, ऐसा मेरा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है जिसे आप कह सकते हैं कि बेस्ट फिनिशर है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ऐसी बहुत सारी मैचेस हैं जिसे मैंने खुद के दम पे लास्ट में एक जिताया है, तो लोग कहते हैं इस बारे में। अच्छा, लोग आपको कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं, तो कैप्टन कूल के अलावा एक ऐसा और भी कोई वर्ड बताइए जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता हो। क्या इसके अलावा तो मुझे उतना, लोग या तो माही भाई कहते हैं या फिर कैप्टन कूल कहते हैं, उतना मुझे समझ में नहीं आता। कैप्टन कूल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि मैं उतना हल्ला नहीं करता और पिच पे शांत रहता हूँ, अपने सारे फील्डर्स पे या फिर अपने सारे टीममेट्स पे मैं पूरा भरोसा दिखाता हूँ कि हाँ, वो जो कर रहे हैं वो अपना 100% दे रहे हैं, तो इसलिए वो मुझे कूल कहते हैं और कभी मैं उनपे झिझलाता नहीं। वैसे तो आपकी मूवी आ चुकी थी MS धोनी, तो हम सब आपके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं, पर एक ऐसे स्ट्रगल पॉइंट बताइए, आपका एक ऐसा लोवेस्ट पॉइंट जो कि आपकी मूवी में हमें देखने को नहीं मिली। ऐसा तो मैंने तो सबसे पहली बात मूवी देखी नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मूवी में क्या दिखाया है क्या नहीं, पर हाँ, लोएस्ट पॉइंट मेरा ये था कि जब मैं क्रिकेट के लिए जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था या मुझे क्रिकेट खेलना था, तो घर की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, पर मेरे दोस्तों ने मेरा पूरा सपोर्ट दिया। तो फिर बाद में जब मैं थोड़ा अच्छा किया और आगे बढ़ता गया, तो फिर घर वालों ने सपोर्ट किया, पर स्टार्टिंग में मुझे घर से बहुत बैकलैश देखने को मिली थी, तो वो मेरे लिए एक डाउन मोमेंट था। अच्छा, बीइंग अ क्रिकेटर, ऐसी कौन सी चीज है जो क्रिकेटर बनकर आपको एक अच्छा इंसान बनने में या बेहतर इंसान बनने में मदद करती है? आप जब 10 लोगों को जानते हो ना, तो आप 10 अच्छे लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, तो आप अच्छे लोगों के से अच्छी चीजें भी सीखते हो। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं या बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने अंदर से हटाई हैं। तो एक अच्छा होता है कि माहौल का असर पड़ता है जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी आने वाली जो हमारी जनरेशन है, ये जो जनरेशन चल रही है, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? उनको कोई आइडिया या फिर कुछ भी सजेशन देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा, क्रिकेट इंडिया में पागलपन है क्रिकेट के लिए, तो हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है और टॉप 11 में आपको सिलेक्ट होना है। तो बस आप समझ जाओ कि आपको कितना ज्यादा प्रैक्टिस करना है और मेहनत करना है, तो मेहनत से नहीं भागे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारे व्यूवर्स और लिसनर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी मिलेंगे ऐसी किसी बड़ी हस्ती के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। धन्यवाद। Thank you, Anwar and Harshi. Our last team is Nikita Taneja and Riya Singh. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, you are audible, Riya. Okay. So I am Riya Singh with my partner Nikita Taneja, and today I will be act as a journalist, and my partner Nikita Taneja will be the interviewee, and she will be playing the role of Mr. Ruskin Bond. So here we go. A warm welcome to you, sir. It's really been a pleasure to have you here among us. So, sir, we have few questions for you. So, Mr. Bond, your very first novel, The Room on the Roof, which you wrote when you were only 17, won the John Llewellyn Rice Memorial Prize in 1957. You were also honored by Sahitya Academy in 1993. Our trees still grow in Dehra. So, do you think that awards encourage and motivate the writer, be it a novice or an experienced personality, to continue with their writing, or all these awards, do they bring out the best in an author? Sir, please. Yeah. Thank you so much for having me here. So today the awards that are given carry a certain amount of prize money that can help the awarded to establish himself, get him fame and all. As for me,
I never did write to win awards. I didn't write Room on the Roof to win any kind of award. It was probably my luck that it got published in the magazine and the authorities found it worthy enough to be awarded. Llewellyn Risk Prize did carry a small amount and it was very useful at that time as well. It gave me self-confidence and encouraged me to make writing a full-time career, which otherwise would have taken a little bit longer to realize. So I think that awards and prizes should go to young writers and novices rather than those who are already pretty established. Okay, so my next question will be, what inspired you to become a writer in the first place? My mom and dad separated when I was 8. So my father went to the fight in World War II. And few days later, we got a letter that said my father had died of a bullet. My mom remarried and I couldn't accept another man in my dad's place. So I used to stay in my room where I created my own little world. I'd curl up in a book and forget about everything else going around me. At the age of 12, I used to read 5 books a week. So I started writing short stories after getting inspired by my favorite authors. And I'll always be a reader first and then a writer. So when I started writing, I just kept going and going. And as I said, after that award, I decided to take up writing as a full-time profession. Okay, so this question is from our viewers. Is it difficult to take up writing as a full-time career? Can we survive by just being a writer? A very good and valid question indeed. It is very difficult to sustain as a writer. I realized this fact 4 years into my college. After college, I juggled 4 part-time jobs because I didn't have any money. I used to be exhausted, but I still wrote at night. My work was constantly rejected by every publishing house. And when I moved back to India, my mom and stepdad had moved to Delhi and my grandparents had passed away. So I rented an apartment in Mussoorie and I started writing for newspapers. Whenever I'd have enough money, I'd write. So as a matter of fact, it is a very difficult job to take up writing, just writing as your profession. You should have a backup and a backup for that as well, because you never know what plan fails at what time. You'd often face writer's block as well. So just get inspired and pen it down to get a beautiful story out. So we have come to an end, sir. Very true indeed. Thank you so much for being here today. It was really an honor to have you on the show. And thank you, listeners, for being such a patient audience. So this was Ruskin Bond for You, Bookworms. Thank you and have a nice day. Thank you, Nikita and Riya. Thank you to all the participants. Now, I would like to invite our judge, Dr. Hemant Kaushik, for his words. So we have come to the end of this very interesting session, interview skills. So first of all, मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि 6 में से 5 इंटरव्यू जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के थे, लेकिन मुझे उतना ही अच्छा लगा कि एक और जो सबसे लास्ट था, जिसका मैं वेट कर रहा था कि कोई एक शायद कोई ऐसा कैरेक्टर चुनेगा जिसका इंटरव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो। तो मुझे लगता है जो जिन लोगों के हमने नाम शुरू में लिए थे, कौन कौन थे, एमएस धोनी, नीरज चोपड़ा, रस्किन बॉन्ड, AR रहमान और एक और कौन थे फिफ्थ? शशि थरूर। तो खैर सबसे मुश्किल तो शशि थरूर का इंटरव्यू करना है, एवरीबॉडी नो, है ना, सबको पता है वो शशि थरूर का इंटरव्यू तो शशि थरूर खुद ही कर लें, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि रस्किन बॉन्ड का इंटरव्यू करना भी आसान नहीं है। रस्किन बॉन्ड का इंटरव्यू करना इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि रस्किन किसी भी ऑथर का इंटरव्यू करने से पहले आपको सबसे पहले उनकी लिखी हुई किताबें पढ़नी जरूरी है, उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और अगर आप किताब पढ़ने वाले हैं और लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको रस्किन बॉन्ड के बारे में नहीं पता है तो ये मतलब बहुत अजीब बात है। मतलब इंडिया में रह के रस्किन बॉन्ड के बारे में आपको नहीं पता है तो ये, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो जिन्हें देखकर नहीं लगता है कि वो इंडियन है, लेकिन वो किसी भी इंडियन से भी ज्यादा इंडियन है। कभी आप रस्किन बॉन्ड से मिलेंगे तो शायद आपको इस बात का अंदाजा होगा। कभी भी आप अपने वीक ऑफ में, छुट्टी में, आप कभी भी
मसूरी जा सकते हैं, वहाँ एक बुक शॉप है जहाँ वो रोज शाम को आते हैं, मिलते हैं, तो कभी भी आप जाके उनसे मिल सकते हैं रस्किन बॉन्ड से, तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी हो जाएगा उनसे मिलने का। दूसरा, AR रहमान का इंटरव्यू भी आसान नहीं है, क्योंकि AR रहमान एक मुश्किल पर्सनैलिटी है, ही इज अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बिकॉज ही डजंट स्पीक मच, वो बहुत कम बोलते हैं, है ना। रस्किन बॉन्ड तो फिर भी बात कर लेते हैं, AR रहमान बहुत कम बात करते हैं, और सिर्फ आपने शायद इंटरव्यू की वर्कशॉप अटेंड की होगी तो आपने सुना होगा ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में बताया गया होगा वहां पर, है ना। तो उनके ज्यादातर आंसर्स वो क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन में ही खत्म हो जाते हैं, वो यस नो में ज्यादातर चीजें कह के खत्म कर देते हैं, तो ये भी डिफिकल्ट इंटरव्यू था। शशि थरूर के बारे में मैं कहूंगा ही नहीं, कुछ डिस्कस करूंगा ही नहीं, क्योंकि किसी ने उनका किया भी नहीं है इंटरव्यू यहाँ पर, और शशि थरूर का इंटरव्यू करने के लिए भी बहुत पढ़ने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है। शशि थरूर, आज की डेट में हम शशि थरूर को सिर्फ जानते हैं एज अ पॉलिटिशियन जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनकी बोली हुई इंग्लिश किसी को समझ में नहीं आती है, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, लेकिन शशि थरूर उसके बियॉन्ड भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है ना। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने जो काम किया है इंडिया के लिए या ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अब आते हैं वापस लौट के अपने इंटरव्यूज पर। तो दो लोगों ने नीरज चोपड़ा, दो लोगों ने 3 लोगों ने धोनी का इंटरव्यू किया। मैं बीच में आपको इंटरव्यू करूंगी, सॉरी, बीच में थोड़ा सा आपको इंटरफेयर करूंगी इसमें कि सर आप फीडबैक दीजिए, पर रिजल्ट अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होगा। राइट, बात वैलिडिटी में डिक्लेयर होगा। राइट, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सो सबसे फर्स्ट जो टीम थी, मृणाल और खुशी, आपका अच्छा था, अच्छा काम था आपका, लेकिन मतलब मैं ये एक बात जो सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए है वो यही है कि रिसर्च थोड़ी और डीप होनी चाहिए थी। डीप इन द सेंस कि एक तो करंटली उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है ना। जैसे कि अगर आप नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू कर रहे हैं तो नीरज चोपड़ा आज की डेट में अपने जेवलिन मेडल के अलावा जिस एक वजह से चर्चा में है वो है उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है। फैशन मैगजीन्स को, आप किसी भी फैशन मैगजीन को उठाएंगे तो नीरज चोपड़ा उसके फ्रंट पेज पे आपको दिखाई देंगे। नीरज चोपड़ा बहुत सारी फाउंडेशंस के साथ जोड़ के आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स के वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, प्लस ये फैशन वाली मैंने आपको चीज बताई। ये सब चीजें मुझे लगता है उसमें और थोड़ी सी ऐड होनी चाहिए थी, हालांकि आपका अच्छा था, मुझे कोई उसमें ऐसा कोई खास परेशानी उसमें दिखाई नहीं दी, बहुत अच्छा आपका एफर्ट था। सेकंड जो टीम थी, दीक्षा और टीना, आप थोड़े से हेजिटेंट थे क्वेश्चंस को लेकर, हालांकि आपके भी सवाल ठीक थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन और स्पॉन्टेनिटी की बात जिस पर हम लोग मार्क्स दे रहे हैं, मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा और काम करने की आपको जरूरत थी। थर्ड जो था, प्रखर और पवन, मैं एक्चुअली क्या था कि शुरू में ये कहा गया था कि फॉर्मल इंटरव्यू या इनफॉर्मल इंटरव्यू, तो मैं ये नहीं समझ पाया कि कौन सा इंटरव्यू फॉर्मल था और कौन सा इंटरव्यू इनफॉर्मल था, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यूज इनफॉर्मल दिखाई दे रहे थे। प्रखर और पवन वाला जो इंटरव्यू था उसमें 2-3 चीजें जो नोट की मैंने, कि एक तो जब आप जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं ना, हालांकि हो जाता है कई बार स्पॉन्टेनियस जब आपका तरीका होता है, आप जैसे कि एक शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने, स्ट्रगल पूर्ण, शुरुआत में ही, कि आपका सफर बड़ा स्ट्रगल पूर्ण था। तो स्ट्रगल पूर्ण तो कोई शब्द नहीं होता, स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल से भरा हुआ आप कह सकते थे, स्ट्रगल पूर्ण कोई शब्द नहीं है ना, या चुनौतियों से भरा हुआ या कुछ भी। ठीक। दूसरी बात कि अगर आप इनफॉर्मल इंटरव्यू में हो, अगर आप किसी स्पोर्ट्स चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहे हो, तो आप जो एंकर हैं, जो इंटरव्यू कर रहे हैं, वो धोनी को संबोधित करते हैं माही भाई, है ना, माही भाई आपने ऐसा, माही भाई ऐसा, माही भाई वैसा, सो दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट अगर आप किसी न्यूज चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि बहुत जगहों पर जाना है, बेसिकली फॉर्मल इंटरेक्शन है, तो आप माही भाई या वीरू भाई या कोई भी भाई, ये आप इस्तेमाल नहीं करते हैं इस तरह के शब्द, है ना। आप उनका नाम लेके या तो बोलते हैं
है ना। और अगर आप बहुत आपसे बड़े हैं एज में तो आप सर भी कह सकते हैं उन्हें, लेकिन ये बहुत इनफॉर्मल इंटरव्यूज में चलता है भाई वगैरह जो आप कहते हैं। हालांकि आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, बहुत स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू था और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। फोर्थ वन जो था ईशाना और सेरा वाला, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि वही था, स्पॉन्टेनिटी की थोड़ी सी कमी थी। क्वेश्चंस आपके ठीक थे, लेकिन कुछ कई जगहों पर थोड़ा सा इनफॉर्मल सा लगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मिल्क की बात कर रहे थे या मिल्क शेक की बात कर रहे थे, या वो सब, वो उस तरीके की इतनी बहुत उसमें नहीं जाते, लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है थोड़ी सी और रिसर्च होती ना। ये सभी इंटरव्यूज में मुझे ऐसा लगा कि लेटेस्ट चीजें नहीं थी। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी का अगर आप आज इंटरव्यू कर रहे हो, कल रात को उन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच जिताकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया, है ना। बहुत टाइम के बाद लोगों ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी इज बैक, महेंद्र सिंह धोनी इज बैक। तो मुझे लगता है कि थोड़े से आप उसमें लास्ट मोमेंट चेंजेस कर सकते थे, और कर लेना चाहिए आप जब इंटरव्यूज करते हैं। तो किसी ने हैंड रेस किया, मैं अभी 2 मिनट में जवाब दूंगा, एक बार मैं कंप्लीट कर लूं बस। फोर्थ वन अनवर और हर्षी वाला जो था उसमें भी मुझे अच्छा लगा, सवाल अच्छे थे, लेकिन उसमें भी वही स्पॉन्टेनिटी की थोड़ी सी, जैसे कि हर्षी ने सवाल पूछा कि आपकी फिल्म आई थी, और तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी फिल्म ना देखी हो। महेंद्र सिंह धोनी इज अ गुड स्पोर्ट्समैन, बट ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, एंड ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट मूवी, है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म नहीं देखी? तो स्पॉन्टेनिटी यहीं पर आती है कि आपसे एक जब सवाल पूछा गया कि आपकी फिल्म आई थी, उस फिल्म में क्या रहा, तो आपको ये कहना चाहिए था कि भाई हाँ, फिल्म में स्ट्रगल दिखाया, लेकिन कुछ चीजें छूट गई, और जो हमने बाद में हो सकता है हम कभी सेकंड पार्ट बनाए या कुछ बनाए। वो स्पॉन्टेनिटी, वो चीजें यहीं पर आती हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी यहाँ पर काम आता है। तो बाकी अनवर आप देख लेना, वो फिल्म अच्छी है। देन लास्ट जो टीम थी, निकिता और रिया, है ना, ठीक नाम लिए मैंने, निकिता और रिया। ये इंटरव्यू अच्छा था। रिया, आप जब आप रस्किन बॉन्ड वाला पार्ट बोल रहे थे, तो क्या आप रीड कर रहे थे कहीं से, या आप खुद ही जवाब दे रहे थे? क्योंकि निकिता ने जवाब दिए थे। निकिता ने जवाब दिया। उस इंटरव्यू में सबसे अच्छी बात यह थी मैम कि उसका रिसर्च लेवल बहुत अच्छा था। उसका रिसर्च बहुत अच्छा था रस्किन बॉन्ड के बारे में, पर्सनल। हालांकि उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेटेस्ट चीजें ऐड हो सकती थी उसमें, लेकिन उसमें रिसर्च बहुत अच्छी थी उनकी बुक्स के बारे में या फिर अवार्ड्स के बारे में। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड सेशन, बहुत अच्छे इंटरव्यूज थे। कुछ और तैयारी आप लोग, मतलब मेरा आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग अच्छे इंटरव्यूज कुछ देखिए, कुछ अच्छे टॉक शोज देखा कीजिए। सीधी बात एक आज तक पे आता है, वो आप देखा कीजिए, या प्रणय रॉय के कुछ इंटरव्यूज आप देखा कीजिए। अच्छे और बुरे इंटरव्यू में फर्क भी आपको मालूम होना चाहिए, रिसर्च भी आपको पता होनी चाहिए कि रिसर्च किस लेवल तक होनी चाहिए। स्पॉन्टेनिटी जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, हर एक के सेशन में मैंने स्पॉन्टेनिटी का जिक्र किया। वो स्पॉन्टेनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तैयारी तो करके जाते हैं इंटरव्यू की, लेकिन जब सामने वाला जवाब देता है ना, तो उस जवाब में से आप सवाल कैसे निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सबको सीखने की जरूरत है, आप लोग सीखिए। बहुत अच्छा आप लोगों ने शुरुआत की है अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आप जर्नलिज्म में जाएंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे, तो आपको और बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now, I would like to invite our second judge, Mr. Naman Sharma, for his comments. Just to be precise, I guess Dr. Hemant covered all the topics which would have been thought of, and maintaining that in the indifference. So yeah, what he said was completely right, that there could be research and spontaneous things much more of in a better go. The presentation was okay. The engagement between the interviewee and the journalist was a good shot. No, nothing questions about that. And a briefing about each and every one would be a bit hectic task for me, because Dr. Hemant Kaushik is much more of the field guy, and he knows what are the
basic things which need to be taken care of. But yes, the formal and informal things would have been one of those which could have been taken care of, because as we have also studied, and our professors have maintained the line, and they did let us know about what is the difference between a formal and an informal interview. So there's something that you guys and more could work on that. But yeah, overall it was a good go. And just the liners about each and every, if I could go, Marilyn and Khushi, I guess, yeah, as Dr. Hemant said, there was something slight lack of engagement which I saw, as far as I saw in that. And then coming up to Tina and Diksha, it was a good go, not an issue. But yeah, research and spontaneous things which were there was a little bit lack of everything in that. And for each one it goes. As we have studied, I have not been more into field, and I've been into corporates, but still I have interactions with the Korean teams and the expats as well. So there's a hindered line between formal and informal. So when you go up to them and ask them a few questions, that presents that on what basis are you going to talk to them. If it comes to formal, then you need to be very derivative, and you need to be very presentable and asking a crisp question, so that they can answer you better, and you have a better response. And if it is informal and informal, so we need to know the line where we do not cross it, and we stay in our limits, so that they also don't feel uncomfortable talking to us. But yeah, research thing that you could have come up with the better and the present stabilities they are working on. As far as I've seen, Neeraj Chopra was presently one of the best experiences Neeraj Chopra has had. He was in Abu Dhabi, and he was experiencing skydiving over there, which was a one in a lifetime experience. If you guys could have known about it, so you could have raised a question over it, and it's more of an informal thing. But yeah, that was a one of a lifetime experience for him, and that would have brought him up. The other thing coming up to Mahendra Singh Dhoni. So Mahi Bhai is the informal way, what we call him, and he is Captain Cool. So there's a good word most of the guys came up with. So this is one thing. And Mahendra Singh Dhoni, as Kaushik sir said, that yes, yesterday's match he brought his team to a different final entering, and that thing, that Mahi Mar Raha is kind of thing, which you guys need to watch. If you not watch the film, that Mahi Mar Raha is coming up back again on the picture. You could have asked him about this. This is the latest news in which Mahendra Singh was. So this is it, and the rest, it was really good to go. And thank you everyone. I'll just precise. Thank you everyone, and Bala ma'am, for inviting me over here and giving me an opportunity to judge such a competition. It's really an opportunity for me, and really a interesting thing that I was invited, and I didn't expect that. Firstly, thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Now I would like to request Ms. Krishna Pandey to say the vote of thanks. Thank you, Palak. Thank you so much. It has been an honor and a privilege to have Dr. Hemant, Kaushik, and Naman with us today. Thank you, Dr. Kaushik and Naman, for taking out your valuable time. And thank you so much, Judge, for interview skills competition in Ritika, a convention of media students organized by the students of DME Media School. I would also like to extend my immense gratitude to the management of DME. Without the support of Mr. Aman Sani, Vice Chairman, Honorable Justice Bhavar Singh, Director General, and Dr. Ravi Kant Swami, Director, DME, it would not have been possible to organize this mega fest. I also thank them for giving us this wonderful opportunity and the resources to execute the same. I'm thankful to Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, and Dr. Sushmita Bala, Head DME Media School, for their constant guidance and encouragement at every step. I thank Jai Hind Times for being a media partner, and the student body of DME Media School, called as SPARK, that is Students with Positive Attitude and Resonating Communication. I also thank the student coordinators of this interview skill competition,
Muskan, Shreya Jha, Vandit, Palak, Akriti Singh. Thank you so much, guys. I'm also grateful to the entire student team of Ritika for their various inputs. They have really put a lot of hard work in organizing this event. There's no doubt in that, and I'm grateful to them. A special note of thanks to my colleague at DME Media School, Mr. Sachin Nair, Mr. Yogesh Sharma, and Mr. Sumantra Das for their technical support. Ms. Sukriti Arora and Mr. Mohammed Kamil for media coverage. Mr. Pramod Pandey, Mr. Mohit Kishore Vats, and Ms. Manmeet Kaur for their support and cooperation. Last but not the least, I would like to thank my fellow faculty conveners of Ritika 2021, Dr. Manaswi Maheshwari, Ms. Shruti, Ms. Mudita, and Dr. Tina Mbora for their excellent team support and ensuring smooth execution of the session. Thank you all. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you all the participants and judges for joining us. With this, we came to the conclusion of the session. The results will be announced in the valedictory session on 13th October at 5 p.m. We have our next event, Slam Poetry, at 3:30 p.m. Thank you so much.